इस समिट के चीफ गेस्ट आदरणीय औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय मंत्री अरुण कुमार सक्सेना सर, प्रोफेसर डीपी सिंह साहब, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया साहब, सीनियर असिस्टेंट एडिटर मोहम्मद उजाले, यहाँ पे आई कैन सी कि डिफरेंट जो गवर्नेंस के पिलर हैं और who all are going to partner us in this journey, they are all present here. So I welcome you all, and I thank Economic Times for giving us this opportunity, so that we can also, like such kind of summit, provide an opportunity for the government officials also to take views of different stakeholders, different partners. So I have a very challenging task which Arpit has given me, like to set the tone of this summit, और थोड़ा heavy शायद presentation हो सकता है. So like, are you ready with the presentation? So I'm going to just present the brief snapshots of what, like, where are we and what is our plan. Like, this journey will be like what our Honorable Chief Minister Saab has given this and taken this challenge is to make UP a $1 trillion economy by 2027. So we all know that this is going to be a very, very challenging task. Over last like 5-6 years, we have grown at the rate of around 8%, barring this 1 year, in which because of COVID, most of the states and like most of the countries could not increase their GDP. So this is the graph, like जो हमारी economy के different 18.6 lakh crore is the like 21-22 GSDP, and it is about $250. So this is the like this blue graph. It is showing the different like growth rate in different years, and this next chart, it is showing that if we are going to grow at the rate of like at the lowest bar is the growth chart trajectory, which will be like if we will grow at the same rate at which we have grown over we have grown over last 5-6 years. So there we will reach somewhere around $450, but it will fall short by like more than half. And the second orange bar is if we like take best practices which is prevalent in all different other states and other countries, then we may grow by more than 16-17%, but we'll reach again somewhere around $650. But if we have to grow and reach to the target of $1 trillion by 2027, then we have to grow at the rate of more than 27%. Next. And like this is again like those who, most of you know economics, and so this is the like composition of primary, secondary and tertiary sector. तो ये नीचे का जो बार है सर, आप लोग सर जो नीचे जो इस तरफ सबसे लेफ्ट साइड में है, वो 26% ये दिखला रहा है कि जो एग्रीकल्चर और जो बाकी जो अभी कंट्रीब्यूशन है दैट इज 26%, और सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 22% है, और टर्शरी सर्विसेज सेक्टर है दैट इज 42%, और उसके आगे टैक्सेज हैं. अगर हमें जब हम लोग 1 ट्रिलियन अचीव करेंगे तो वी हैव टू लाइक एग्रीकल्चर विल ऑल्सो ग्रो. एज यू कैन सी दैट प्राइमरी सेक्टर विल ग्रो फ्रॉम 64, जो आज के डेट में $64 है, $64 billion. So from there it will grow to $173 billion. A growth of like again, but the composition from 26% it will come down to 17%. So that like we will be focusing more on sir manufacturing पे जब तक कि हम focus नहीं करेंगे, और secondary sector का जो growth होगा from 22% to 27% will reach that the contribution of secondary sector. और इसलिए huge investment will be required in particularly in secondary sector. And this is the again graph जो कि हमारे proposed investment क्या होंगे, that is the depiction of that graph. ये मैं ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने टोटल जो हमारे गवर्नेंस है उसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इन सारे सेक्टर्स में डिवाइड करके हर सेक्टर के लिए जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के, उनको डिप्यूट किया गया है, और सभी सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है. सभी मिनिस्टर साहबानों का भी हम लोग उसमें इनपुट ले रहे हैं, डेलॉयट का इनपुट लिया जा रहा है, एंड वी विल कम अप विथ ए रोड मैप फॉर एवरी सेक्टर. नेक्स्ट स्लाइड. अगेन
इसमें जो जैसा मैंने बताया सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो राइट साइड में दिख रहा है कि एग्रीकल्चर जो डिफरेंट जीएसडीपी के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका आज के डेट में 1920 में क्या 1920 वाज आवर लाइक वन ऑफ द नॉर्मल ईयर, क्योंकि 2021 2022 these are not normal year because of COVID. 21.70% was the contribution of agriculture and fisheries and forestry, that will come down to 15.20. इस तरह से डिफरेंट हम लोगों ने इस चीज़ के निकाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 11.10 it will come up to, it has to come up to 13.30 to reach somewhere around this target. Agriculture में we are saying that agriculture will also grow, but mostly the like agriculture में जो agriculture से जो input जाएगा towards the manufacturing sector, agro processing, वो काफ़ी ज़्यादा उसको improve करने की ज़रूरत होगी। Next slide. Again जो primary sector का जो हमारा contribution है, we have spoken about this contribution. वहाँ पे आप right side में as you can see जो crops का contribution होता है that is 16%. Livestock जो मिल्क का लाइव स्टॉक में भी मिल्क का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज अराउंड 5% ऑफ द टोटल जीएसडीपी। बट जब हम लोग मिल्क की अगेन विल टॉक अबाउट लाइक जब मिल्क का हम लोग प्रोसेसिंग देखते हैं सो देयर वी आर लैगिंग। तो किस तरह से हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज द लाइक इनपुट एंड हम लोग उससे जो जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है कैसे उसको इंक्रीज करेंगे, वो चीज़ दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से बस जॉट डाउन किए हैं इसके लिए कि हाँ एग्रीकल्चर में वी विल बी फोकसिंग ऑन क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट थ्रू फार्म मैकेनाइजेशन, माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विल ऑफ कोर्स बी देयर। लाइक अभी जो हम लोग फिगर्स देखते हैं कि वी आर इम्पोर्टिंग पल्स और ऑयल सीड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हाउ डू वी थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम उसको इंक्रीज करें, किस तरह से हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अभी भी हम लोग बासमती, काला नमक और वो चीज़ें जब देखते हैं हम लोग तो बासमती का दो हम यूपी में प्रोडक्शन सबसे हाई है, लेकिन उस तरह से एक्सपोर्ट्स में हमारा वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, किस तरह से हम उसको इंक्रीज करें। उसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर में हम लोग किस तरह से यील्ड इंक्रीज करें, वी हैव टेकन कि जो मैक्सिमम जो हमारे हाई यील्डिंग वैराइटीज हैं उसको किस तरह से हम अपने यहाँ पर लेके आए। वैल्यू रियलाइजेशन, बनाना, मैंगो की किस तरह से सेल्फ लाइफ, वी ऑल नो लाइक यू मोस्ट ऑफ यू विल बी रेजाइडिंग इन लखनऊ, मगर जो लखनऊ का जो मैंगो है अगेन हम मैंगो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन अगेन हमारा कम है, किस तरह से हम लोग उसको इंक्रीज करें। लाइव स्टॉक्स में अभी भी हम लोग एग जो टोटल हम एग की बात करें तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपने स्टेट में, हाउ डू वी ब्रिज दैट गैप, अगर जब तक कि उसको ही नहीं करेंगे हाउ डू वी इंक्रीज ब्रॉयलर प्रोडक्शन। फिशरीज अगेन इज अ बिग अपॉर्चुनिटी सर, हम लोग किस तरह से अभी जैसे कि आगरा में भी कई जगहों पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो खारा पानी वहाँ पे है, आगरा में जो पानी बहुत अच्छा नहीं है, मगर वहाँ से भी किस तरह से हम लोग श्रिम्प, प्रॉन उन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इनलैंड वाटर हमारे पास है मगर किस तरह से हमें वहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं। मिल्क प्रोसेसिंग जैसा कि हमारे पास अभी आपको दिख नहीं रहा है, वी आर लाइक जो हमारा टोटल यील्ड मिल्क प्रोसेसिंग में 10% अभी हमारा ये चीज़ होता है आउट ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन, ओनली 10% गोज फॉर मिल्क प्रोसेसिंग, उसे हमें 25% तक ले जाना होगा। नेक्स्ट, ये अगेन थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है, सेकेंडरी सेक्टर में बात है, और सेकेंडरी सेक्टर में जैसा कि मैंने बताया हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग और उस चीज़ के इन्वेस्टमेंट पे वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड, ये जो आपको 3 बार दिख रहे होंगे वैसे ये मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन जो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं उसके हैं। ये जो हमारे फोकस सेक्टर्स होंगे, फूड प्रोसेसिंग जहाँ पर कि यूपी का वी हैव सम एडवांटेज, food processing, pharma and medical equipment, automotive, aerospace, apparel, chemical, metal machineries, metal and machinery, and ESDM. I would like to in सारे जो policies हैं हमारे, we have come up with, we have revisited every policy, और honorable CM साहब के directions थे, सभी लोगों ने सारे departments जो हमारी policies थी उनको redesign किया है। And for this next global summit which is going to happen in like second week of February, हम लोगों ने we are going there, we are trying to go and convince our investors with this new policy, क्योंकि जो पुराने हमारी policies थे उनमें जो भी अगर कहीं पर भी bottlenecks हम लोगों ने देखा उनको हम लोगों ने करेक्ट करने की कोशिश की है, और किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन हम लोग फास्ट कर सकें उस चीज़ों को भी हम लोगों ने एड्रेस किया है। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, ये इसमें अगेन ब्रीफ स्नैपशॉट में है कि हमारी पॉलिसीज़ में क्या हाईलाइट्स हैं। अभी हम लोगों ने PLI जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है
उस चीज़ में भी हम लोगों ने टॉप अप करने का एक मॉडल जो पहले नहीं था, और दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ दिस प्रोविजन ऑल्सो, और यहाँ पे ऑप्शंस है बिटवीन 3 ऑप्शंस, एनी इन्वेस्टर कैन चूज कि किस ऑप्शन में वो इंसेंटिव लेना चाहेगा। लॉन्गर इन्वेस्टमेंट पीरियड इज देयर, कई हम लोगों ने एडिशनल सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया है, और एज आई टोल्ड यू कि इसमें एग्जीक्यूशन को हम लोग को वी विल हैव टू इम्प्रूव आवर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसीज, सो दैट जो ग्रीवांसेज हैंडलिंग उसको हमें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट स्लाइड। This is about tertiary sector. Like tertiary sector growth will be again like we have to like 4 times जो tertiary sector का contribution should increase, और our focus area would be IT industries and tourism mostly. Like next again ये थोड़ा सा स्नैप ये चीज़ है कि IT में हम लोग क्या फोकस करने जा रहे हैं, सम ऑफ आवर फोकस सिटीज़, किस तरह से हम लोग वहाँ पे डिफरेंट, लाइक जैसे कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑलरेडी IIT कानपुर के सपोर्ट से हम लोग ड्रोन में ये कर रहे हैं, उस तरह से वी हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट सिटीज़ में कौन कौन से हमारे सिटीज़ फोकस होंगे, और वहाँ पर हम लोग किस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। नीचे में इसमें अगेन दिया गया है कि किसी जो एक पाथ होगा हमारा, उसमें किस तरह से हम लोग ऑगमेंट करेंगे IT अपने ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो टेक्नोलॉजी पूल है उसे हाउ डू वी इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजी पूल, and finally establish an IT ecosystem. Next slide. This is about tourism sector. अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट ने टूरिज्म हमारी पॉलिसी अप्रूव की है। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इको टूरिज्म। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ की पहले हम लोगों ने टच नहीं की थी, उनको कोशिश किया जाएगा। वी हैव टू ब्रिंग मोर एंड इन्वेस्टमेंट टू द टूरिज्म सेक्टर, और जो डिजिटाइजेशन लाइक जो फॉरेन टूरिस्ट या बाकी जो बाहर से आते हैं, हाउ टू इम्प्रूव लाइक देयर होल एक्सपीरियंस वुड इम्प्रूव, ऑडियो विजुअल किस तरह से हम लोग टूल्स दें जिससे कि हम उनको इम्प्रूव कर सकें, टारगेट करें हम लोग किन फॉरेन कंट्रीज पे वहाँ से टूरिस्ट इनफ्लो लाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये अगेन जो चीज़ें हम लोग लाइक दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लानिंग में, दिस इज जस्ट वी आर शोइंग कि किस तरह से हम लोग इसको जो भी रोड मैप ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज आवर लाइक नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स। राइट साइड में वी आर फोकसिंग ऑन कौन कौन से हमारे मेजर क्लस्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू गो ऑन ए क्लस्टर अप्रोच। अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की हम बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो हमें क्लस्टर अप्रोच ये करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग वो क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज अगेन अगर दिस इज लाइक जब हम लोग वंस विल रीच टू दिस $1 trillion, एंड तो द होल सोसाइटी शुड ग्रो, and the benefit should percolate to each and every individual. So this is about the worker population ratio, किस तरह से how do like worker population ratio from 35.1% it will go up to 42.8%, and like of course per capita income जो अभी we are somewhere close to around 50% of our national per capita income, but we will be crossing, like if we achieve this target, then we will be crossing like our national per capita income, and for this particularly for this mission, that's why we are here and we seek support from all of you. और जो राइट साइड में जो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन है, अगेन एम्प्लॉयमेंट का जो वी आर मोर लाइक डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट मोर एंड मोर पीपल विल मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेकेंडरी सेक्टर। सो नेक्स्ट, सो दिस इज व्हाट इट ऑल मा लाइक थोड़ा सा मैंने जल्दी इसको ये करने की कोशिश की है, बट लाइक दिस इज एन ए ब्रीफ दैट where are like how are we progressing, जो भी we cannot like think of reaching this target unless we have a very solid roadmap. So this is what we are doing for last 3-4 years, but this is again like this is not finalized. Would be seeking like views from different stakeholders, our advisors, other partners, and then we will be coming up with this final roadmap maybe by the like first month of next year, like January 2023, and then for next 4.5 years we would be completely on this task. Midway, of course, midway corrections would be there. So thank you so much for to all of you for giving me time, and we hope that we'll keep this journey and we will partner together to take our state and reach up to this $1 trillion mission. Thank you so much.